I want to discuss about second part of periodic classification and periodic properties. And in this lecture, I am going to discuss about modern periodic law, modern periodic table, its properties and application. Okay. Then first of all, about modern periodic law. Because after the failures of Mendeleev periodic table, all the chemists of the world start working about the modification of Mendeleev periodic table. And after working some years, finally, under the leadership of scientist Moseley, a modern periodic table is formed. And in this periodic table, atomic number is taken as a base of periodic table. Then first of all, I am going to discuss about modern periodic law. Modern periodic law. The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. Okay. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. It means modern periodic table is formed on the basis of atomic number of elements in place of their atomic mass. And on the basis of this law, a modern periodic table is formed. Since there is major contribution of scientist Moseley, along with all the scientists, all the chemists, that's why scientist Moseley is considered as the founder of modern periodic table. In modern periodic table, there are 7 periods, no doubt, as per Mendeleev periodic table. In modern periodic table, there are 7 periods, but 18 groups. In Mendeleev periodic table, there were 9 groups. But in case of modern periodic table, each group is divided in 2 parts. Ultimately, in modern periodic table, there are 18 perpendicular groups. Modern periodic table further divided in 4 blocks: S block, P block, D block, and F block. S block, P block, D block, as well as F block. And each block elements have their individual characters. Okay? Then, in brief, I want to explain about properties of modern periodic table. Properties of modern periodic table. First property, in modern periodic table, there are 7 horizontal periods and 18 perpendicular groups. Clear? Second property. First period of modern periodic table is considered shortest period. First period of modern periodic table is considered as shortest period, and it has only 2 elements.
only two elements, इसमें केवल two elements, and these two elements are shortest period. First period is started having two elements, hydrogen and helium. Later I will draw modern periodic table, but it is a brief description. After the clarification of this one, after the explanation of this one, I will also form a modern periodic table so that you can form, you can learn, you can analyze modern periodic table by yourself. Right? Third property. Second and third period. Second and third periods are considered to be short periods. First period is the shortest period, but second and third period is said to be short period, and each has 8 elements. In second and third period, these both the period are said to be the short period, and having 8 elements in each. For example, as in second period, element you know, Li, wave, canoe, funny. Here 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All these elements belongs to second period. And you can check. You can check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 elements. By the same way, in case of third period, there are also 8 elements. And if you are interested, we can also write the element of third period. And these are the elements. Simply you can notice. Simply you can notice. Simply you can notice. Namagal, ship's color. All these elements belongs to third period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Means second and third, both the periods have 8 elements and are considered to be the short period. Okay? Property number 4. In fourth property, you notice properly. In case of under the fourth property, period number fourth and fifth as well as fifth periods, these are considered to be long period. Long periods, and each have 18, and each has 18 elements. Clear? Means हमारे periodic table, modern periodic table में the third, fourth and fifth periods, these are considered to be the long period, and each period, ultimately we are discussing basically about fourth and fifth period. Fourth और fifth period में total number of element you know 18 elements are present in both the periods.
Let us giving the name of elements either belongs to fourth period or fifth period. Okay? For example, as in fourth period. Okay? Fourth period. The number of elements present in the fourth period. Kakka, Sakati, Vakraman, Feko, Nikunjan, Gagi, ऐसे बरकर. AS, this is the AS means arsenic. First I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kakka, Sakati, Vakraman, Feko, Nikunjan, Gagi, ऐसे बरकर. This is the selenium. Se. First of all, giving the name potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, chromium, and bromium or bromine. This one is, everybody know, this is the element belongs to inert gases, krypton. Now you have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in front of you. And how will you learn? First of all, their atomic number 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. These are the 18 elements which are given in front of you. And this belongs to fourth period. And total number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And by the same way, fifth period also has 18 electrons. Fifth period also has 18 electrons. Ultimately, I hope everybody come know, in modern periodic table, fourth and fifth period are considered to be long period, and each period, I mean to say, fourth and fifth period has 18 elements. Okay? Now, property number 5 means under fifth property, sixth period is considered to be the longest period. Sixth period is considered to be the longest period. Simply now, in present time, because before some time, only sixth period is considered to be the longest period because it has 32 electrons. But recently, if we discuss about 7th period, that has also 32 electrons. So, in modern approach, 6th and 7th period both are said to be longest period. And each period between 6th and 7th period has 32 electrons. Means 6th period may be 32 electron hai, and 7th period also has 32 electron. Because some years before, before some time, 7th period is considered as incomplete period. But presently, there are also 32 electrons. Okay?
And how will you consider that there are 32 electrons, just like suppose we are giving the example of 6 period. 6 period में हम कैसे प्रूव करेंगे कि there are 32 elements? Because you know, in case of 6th period, 14 elements from atomic number 58 to 71, mean total 14 elements. These are placed outside the periodic table in F block. And settled as lanthanoids. In 14 element, although the 14 element from atomic number 58 to 71, तो 58 से लेकर 71 जो एलिमेंट 14 एलिमेंट्स हैं ये 6 पीरियड के ही हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट ना होने के कारण इन 14 एलिमेंट मींस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर या ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया है एंड आर नोन एज लेंथेनॉइड्स. That's why in 6 period 18 elements are present in periodic table and 14 elements are present outside periodic table in F block. It means 6 period में 2 एलिमेंट S ब्लॉक के. समझना बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है. 6 पीरियड में 32 कैसे हैं? 2 elements are present in S block, 10 elements are present in D block, 6 elements are present in P block. Total 2 S block के, 10 D block के, 10 और 2 12 और 6 element P block के, तो 12 6 18 and 14 element whose atomic number is stand between 58 to 71. इनको पीरियोडिक टेबल से हटाकर बाहर F ब्लॉक में रखा गया एंड कंसिडर्ड एज लेंथेनॉइड्स. Why these are said to be lanthanoids? It will explain by me on account of the individual properties of block. This is the common properties. And by the same way, 7th period is also longest period that has also 32 elements, in which 18 elements are present in S, P and D block, 2 S block में, 10 एलिमेंट D ब्लॉक में, 6 एलिमेंट P ब्लॉक में, तो 18 हो गए एलिमेंट S, P, D में. किस पीरियड के? 7th पीरियड के. और 14 एलिमेंट 7th पीरियड के. 14 एलिमेंट यू नो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103. These are also 14 elements. These are placed outside periodic table in F block. क्यों? क्योंकि 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे थे. अतः इनको 14 एलिमेंट को फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103 इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर F ब्लॉक में रखा गया है एक्टिनॉइड सीरीज में, और दीज आर नोन एज एक्टिनॉइड्स. राइट. This is the short description explanation related about 7 periods. ये मैंने डिस्कशन किया आपको 7 पीरियड के बारे में. क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. This up to here we have to discuss basically about the periods. Now modern periodic table divided in 4 blocks. मेंडलीव के सपनों के संसार का सुंदरीकरण हुआ, मॉडर्निफिकेशन.
और इसमें होल द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक, S block, P block, D block, F block. This is the particular property also related to the modern periodic table. It is divided in 4 blocks, S block, P block, D block, as well as F block. In case of S block, you know, there are 2 groups in S block. There are 6 perpendicular groups in P block. There are 10 perpendicular groups in D block. And there are 18 groups in F block. Okay? That's why modern periodic table divided in 4 block. Means S block, P block, D block, as well as these are the 4 blocks. 4 blocks are the modern periodic table. You know, as we know well, in S subcell 2 electron, P subcell 6 electron, D subcell 10 electron and F subcell 14 electron. इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था इन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. और एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दें, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन. You know, this is the basic reason that in case of S block, 2 perpendicular groups are present. In case of P block and S block, 2 groups having 2 groups. In case of P block, having 6 group. In case of D block, having 10 groups. And in case of F block, having 14 groups. मैं पीरियोडिक टेबल अभी मैं ड्रा करेंगे, then you will notice these groups are present or not. Okay? The 4 blocks are present in modern periodic table. And one thing more, S block elements are known as S block elements. Simple name. S block, there are 2 groups in S block. First group and second group. The S block elements, first group under S block element, first group elements are said to be alkaline metals. And second group elements are said to be alkaline earth metal. P block element commonly known as P block elements are typical elements or representative elements. Okay? P block elements are said to be typical elements. I will discuss later about the properties of P block. And D block elements are commonly known as transition metals. And F block elements are known as rare earth metals or rare earth elements. These are the common names of S block, P block, D block as well as F block elements. Clear? In modern periodic table, the elements are arranged in any period from moving left to right in increasing order of their atomic number, not atomic mass. Okay? These are the particular properties. And now, explaining the properties related to S block, P block, D block as well as F block elements. First of all, I want to draw modern periodic table in front of you. Right? And this is the skeleton of modern periodic table. S block element from here. These are D block elements. From here to this is the D block. And this one is considered to be the P block. From here up to here.
S block, D block, P block. As you know well, in S subcell two elements are present. That's why in S orbital 2 electrons are present. That's why in S block 2 groups are present. In P subcell 6 electrons are present. That's why 6 groups are present. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in P block. And in this subcell 10 electrons are present. That's why in D block 10 group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And later I will discuss about the F block. And recently F block elements. In F block, since there are 14 elements in F subset, and that's why in F block 14 groups are present. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And in this 14 group, series of 2 elements are present. Series of 2 elements are present. Lanthanide, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and one more 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and one more 14. And first series, this one is known as allotted for lanthanoids, and this series is allotted for actinoids. That's why it is known as lanthanide series, and this one is known as actinoid series. And now see, this is the first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, and seventh period. These are the periods which are parallel to the base, and these are the 18 perpendicular groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Right? Okay. An element in first period 2 elements, hydrogen and helium. In second period 8 elements are present. Atomic number 1, 2. Second period 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And here 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. These 18 elements are present there. Okay? And in case of fourth and fifth period, 18 elements are present in both the periods. See here. We are filling the element according to block. Hello, Leena, Kumari, Robin, Chansey, Fra, Binu, Mahengi, Kaisar, Bali, Raymond. We are filling the element according to block. In S block, two groups are present. First group, second group. First group elements are known as alkaline metal, and second group elements are known as alkaline earth metals. Okay? And you can learn them easily. Hello, Leena, Kumari, Robin, Chansey, Fra, Binu, Mahengi, Kaisar, Bali, Raymond. This is a learning trick. Different sorts of techniques and tricks are provided by the teacher and also adopted by the students. बर्थडे था स्टूडेंट का और इनवाइट किया हम लोगों को. गर्ल्स स्टूडेंट का बर्थडे था. A lot of teachers are present there. I was also there. जिसका बर्थडे था उसका नाम था लीना. She was a very bright scholar.
Another student was the Binu. Binu was the brightest scholar, but the बर्थडे जिस स्टूडेंट का बर्थडे था, पढ़ने में जीरो, फैशन में हीरो, जिसका बर्थडे था उसका नाम था लीना। तो सेकंड स्टूडेंट आती है और उससे कहती है, हेलो लीना कुमारी रॉबिन चांसी फ्रॉक। हेलो लीना कुमारी, हमने रॉबिन कंपनी की चांसी, मैंने चंद्रमा जैसी चमकती फ्रॉक मैंने फ्रॉक पहन रखी। अब रेमंड की शर्ट पहन रखी थी उसने। अब उन्होंने कह दिया कौन सी, रॉबिन की। बहुत गुस्सा आया, हेलो का जवाब नहीं दिया, इसलिए खाली पड़े देखी। और उससे क्या कहते, बीनू महंगी, बहुत महंगी है। कौन, केसर बाली रेमंड। क्वालिटी कपड़ा क्या होता है, रेमंड का। और रेमंड में कई वेराइटीज होती है, उसमें सब फेमस वेराइटी थी। बीनू महंगी, महंगी है, केसर बाली रेमंड, केसर वाली रेमंड। Hence you can learn. And atomic number, so easy trick. Atomic number कैसे लर्न करें? You should remember this one, 2 8 8 18 18 32। इनको लर्न रखे हैं, 2 8 8 18 18 32। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप का है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर। 1 में 2 ऐड कर दो 3, दूसरे का आ गया। 3 में 8 ऐड कर दो 11, इसका आ गया सोडियम का। 11 में 8 ऐड कर दीजिए 19, इसका आ गया। 19 में 18 ऐड कर दो 37, इसका हो गया। 37 में 18 ऐड कर दो 55, इसका हो गया। अब 55 में 32 ऐड कर दो 87, इसका हो गया। इट इज सो इजी टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ कंसर्न एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। सेम कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई ऑल्सो फॉर द सेकेंड ग्रुप। जैसे था 2 है, सेकेंड ग्रुप 2 और 2 4। 4 में 8 ऐड करो 12, 12 में 8 20, 20 में 18 38, 38 में 18 ऐड करिए 56, एंड 56 में 32 88। नो नीड टू टेक rectification to learn how to learn the atomic number. So easy, right? Now about the p block elements. अब देखिए p block element में 13 group element. How will you fill up the 13 group element? बेटा बाल जयंती, आज लर्न बाल जयंती। और सेकेंड यू कैन लर्न बैंगन आलू गाजर इन थैला, बिकॉज पॉलिथीन इज बैंड। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। एंड इन 14 ग्रुप एलिमेंट्स, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। What is the learning trick? Simply you can adopt. काशी गे शंकर पार्वती, मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है और शंकर जी वहीं पे इस समय रेजिडेंस बना रखा है अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। काशी गे शंकर पार्वती, सिंपली यू कैन, काशी गे शंकर पार्वती। एंड 15 ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ओके, हाउ विल यू लर्न? नाइट्रोजन फास्फोरस, दिस इज द फास्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सिंपली यू कैन लर्न नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी इन फ्रंट ऑफ इंडिया। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, सी है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। एंड इनके साथ 16 ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुनियम पोलोनियम। और इसको कैसे याद करें? इन एग्जामिनेशन दिस इज ओनली द लर्निंग टिप्स, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। इट इज ओनली द लर्निंग कैप्सूल। एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन
term test examination, final examination. Half-yearly examination was running. I was the invigilator there. एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मेरी तरफ एकटक देख रहा था और पैर से उसको पुश कर रहा था चीटिंग पर्पज से। उसे इरिटेशन हुआ आगे वाले स्टूडेंट को। उसने मुड़ के कहा मैं नहीं दिखा सकता, उससे टीपो। मैंने सुना, मुझे इरिटेशन हुआ। मैंने कहा स्टैंड अप, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग होल द क्लास। उसने कहा सर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, ये मुझसे बार बार परेशान कर रहे थे, मुझे बताइए बताइए, दैट्स व्हाई। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन यू। ओ से टीपो। मैंने लिख के देखा ओ से टीपो। मैंने कहा वो दिस स्टूडेंट इज नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ही इज कंसिडर्ड टू बी द कजिन ऑफ मेंडलीव। ओ से टीपो। मैंने कहा थैंक यू, सिट डाउन। नाउ about 17th group element, about 17th group element, fluoride, chloride, bromide, iodide, acetate. These are the 17th group element: fluoride, chloride, bromide, iodide, acetate. There was a particular meeting related to ब्राह्मण महासभा। उन्हें ब्राह्मण सारे कलेक्ट थे, एक से पूज्य और विद्वान। डिस्कशन था कहां के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। एटावा अपना बता रहा था, कहीं के कोई अपना बता रहा था। तब तक एक खड़ा हुआ, उसने बोला और उसके जो बताया एक्सप्लेन किया उसमें केमिस्ट्री ही नजर आ रही थी। व्हाट? फर्स्ट क्लास ब्राह्मण इन अतर्रा। बांदा था, बांदा भी कस्बा है अतर्रा, बांदा इज द डिस्ट्रिक्ट, उसमें टाउन है अतर्रा। तो उसने खड़ा हुआ, कहता लिसन टू मी। मैं तो वहां चुपचाप बैठे सुन रहा था, क्यों मेरे ऊपर अमृत की बारिश हो रही थी। उसने कहा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण इन अतर्रा। मैंने लिख के देखा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण इन अतर्रा। वेरी गुड, आई थैंक्स टू हिम। और मैंने उसको कम से कम 21 टाइम्स सल्यूट किया। एंड लास्ट वन 18th ग्रुप एलिमेंट। एंड 18th ग्रुप एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, केआर, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। एंड हाउ विल यू लर्न टू देम? Although it is simple, helium, neon, argon, krypton, xenon, as well as radon. लेकिन यदि लर्न नहीं होता है, सी है मेरे रेजिडेंस के जस्ट बगल में एक स्टूडेंट रहता है। थायराइड प्रॉब्लम होने का उसका वेट अप्रॉक्स 80 kg है एंड ही इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। उसका घर का नाम हनी है। उसे एक ट्यूटर पढ़ाने आते हैं, एके सर। वो क्रिकेट खेल रहा था पड़ोस में और मुझे ऐसा लगा, मैं बाहर था अपने घर के, मुझे ऐसा लगा कि कोई स्कूटर से उनके घर आया और मुझे लगा उसके ट्यूटर आ गए पढ़ाने। तो मैंने एक अच्छे पड़ोसी के कर्तव्य निभाते हुए मैंने उससे बोला हनी एके सर, हनी एके सर, हनी एके सर। मतलब मैंने उसको नॉलेज एक्नॉलेज दिया, हनी एके सर, तुम्हारे एके सर पढ़ाने आ गए, हनी एके सर। वो दौड़ के गया, क्यों ट्यूटर से बच्चे बहुत डरते हैं। वाई? वो तुरंत घर में कंप्लेन कर देते हैं, दे हैव टू कंप्लीट द वर्क। और पास जाके देखा बेहद खुश था। मैं कंफ्यूज हो गया था। वो एक बिजली मैकेनिक था, उनके घर आया था, उनके सर नहीं थे। तो बड़ा खुश होते हुए लौट रहा, मुझसे क्या बोल रहा है। मैंने कहा हनी के सर, वो लौट गया खुश होते, क्या कहता है अरा ईना। मतलब वो एके सर नहीं थे तो क्या कहता है हनी एके सर, तो कहता है अरा ईना, अरा ईना। वो नहीं है। 18 ग्रुप एलिमेंट जनरेट हो गए। सीयर वंस अगेन, हनी एके सर
और जब एक सर नहीं जो पास जाके देखा बिजली मैकेनिक तो बड़ा खुश हुआ और उछलता चला क्या कह रहा है, आरा ईना, आरा ईना, ये नहीं। Hence we can also learn to 18 the group elements. And now one thing, how will you learn the remaining element of the P block which are basically related to the 7th period? P block के भी उन एलिमेंट को नहीं लिखा जो रिसेंटली डिस्कवर होने के बाद 7th पीरियड में, पी ब्लॉक के अंतर्गत 7th पीरियड में रखे गए। इनको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। सी, कैपिटल यू, सी एन प्रॉपरली, कैपिटल यू, कैपिटल यू, कैपिटल यू, कैपिटल यू, कैपिटल यू, कैपिटल यू, इतना तो आप लर्न कर लेंगे। सभी में स्मॉल यू, 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 सभी कैपिटल यू था। कैपिटल यू के बाद सभी में स्मॉल यू, और फिर कैसे, टी, क्यू, पी, थैंक यू परिहार जी, यू 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 लिख लिया, स्मॉल यू लिखा, टी क्यू पी, ये क्यू है, ये टी है, ये क्यू है और ये पी है। तो कैसे लर्न करेंगे, थैंक यू परिहार जी, मुझे लिए बोल रहा है स्टूडेंट। और आगे हम सबकी ओर से, यहां पे क्या है, यच है, हम सब, यहां यस है और यहां ओ है, हम सबकी ओर से। मैं नहीं समझ पाए इनको कैसे लर्न करें, देखिए इन डिटेल सी है। ये पी ब्लॉक में जो 7th पीरियड में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को जो रिसेंटली डिस्कवर किए, इनको लर्न कैसे करें। पहले 6 यू, 1 2 2 3 4 5 6 यू हुए। अब सब एक स्मॉल यू, 1 1 स्मॉल यू, सभी में एक एक स्मॉल यू हो गया। यू है, ये ना समझ बैठना, स्मॉल यू। अब आगे थैंक यू परिहार जी, थैंक यू परिहार जी, हम, ये यू है और यच है, हम सबकी ओर से। तो यच हुआ यस और यू, थैंक यू परिहार जी, हम सबकी ओर से। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टूडेंट्स, और इनको भी लर्न कर सकते हो। एंड नाउ अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट विच आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको कैसे लर्न करें। सी, केमिकल्स, यू नो, आजकल केमिस्ट्री लैब सुना है। एक बड़ा सा बीच में आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो चूंकि टेक्निक का दौर चल रहा है, एक छोटी सी पोएम रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जानते हैं लैब, बहुत खूबसूरत लैब केमिस्ट्री की होती है। कभी लाफिंग गैस, कभी टीयर गैस, लाफिंग गैस, वार गैस, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ गैसेस आर फॉर्म देयर। कोई गैस हंसाती तो कोई रुलाती, और यह न्यूज अलंकार का है। इसमें केमिस्ट्री लैब गए, केमिस्ट्री लैब गए, एक बार देखा टेस्ट ट्यूब बड़ी क्यूट सी, केमिकल लैब की हीट किया, रिवर्स में रिएक्शन हुआ, लाफिंग गैस बनी, प्यार का प्रोडक्शन हुआ। फिर तो रोज उसके घर के चक्कर लगाने लगे, मींस हर तीसरे पीरियड के बाद 4th पीरियड में किसका, लैब का विजिट पीरियड होता है। और केमिस्ट्री लैब के पीरियड स्टूडेंट इंतजार करते हैं, क्योंकि वहां डिफरेंट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर के मिल्क से वाटर टू मिल्क, वाटर टू इंक, वाटर टू ब्लड, ठीक है ना। तो एक क्यूट सी
टेस्ट ट्यूब बड़ी क्यूट सी, केमिकल डाल के हीट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, लाफिंग गैस बनी, प्यार का प्रोडक्शन। फिर तो रोज उसके घर के चक्कर लगाने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक दिन एग्जामिनर को आना होता है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में एग्जामिनर को आना होता है। और एग्जामिनर तो केमिस्ट्री का फादर बन के आता है। उस दिन मेरे टेस्ट का कंफर्मेशन था, जिस दिन केमिस्ट्री की बाप की ओर से मेरा इनविटेशन था। पहुंचा मैं, क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया। मेरी बात सुनकर वो तेजी से बॉयल हुए, मेरी बात सुनकर वो तेजी से बॉयल हुए। इग्निशन ट्यूब से जैसे सोडियम निकल पड़े, इग्निशन ट्यूब से जैसे सोडियम निकल पड़े। चीख कर बोले, पहचान अपनी औकात, गोल्ड मिल नहीं सकता आयरन के साथ। उन्होंने तोड़ दिया मेरे अरमानों का बीकर, हम चुप रहे बेंजल डिहाइड का घूंट पीकर। टेक्निक केमिस्ट्री, देन बीवला, केमिकल डुप्लीकेट थे। मैंने क्या ये टेस्ट व्हाइट कलर आएगा, रेड कलर आएगा, इसमें डाला कोई कलर ही नहीं। अब या तो स्टूडेंट कोई टेस्ट ट्यूब में कोई रेड कलर का रेजेंट मिला के देता, देखिए पॉजिटिव टेस्ट आया। अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ा और अपने लैब असिस्टेंट के साथ वी हैव टू विजिट इन केमिकल शॉप। केमिकल शॉप बंद, ओपन थी। मेरे असिस्टेंट साथ में था, उसने बुलाया, क्या कहता है, देखिए इधर से देखिए टेक्निक, कू एजी आओ। ऊपर छत में खड़ा था ओनर, उसे कहता कू एजी आओ, कू एजी आओ। राजी हो आने के लिए? राजी है। उसने कहा हाँ राजी है, अभी आ। क्या लेना उसने पूछा, बड़े गुस्सा लगा, वहीं से पूछ रहा क्या लेना है। तो गुस्सा की कहता है मेरा लैब असिस्टेंट, जिंकड है जी, ZNCD जिंकड है जी। मेरा लैब असिस्टेंट ओनर से कहता है, केमिकल शॉप के ओनर से, जिंकड है जी, सनकी कहीं के, जिंकड है जी सनकी। उनका ओके, आई एम कमिंग। अब जिसकी शॉप जो किसी काम में बिजी था और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सुचित्रा, वो उनसे क्या कहते हैं, सुचित्रा योर लाला अंकल। क्योंकि हमारे लैब असिस्टेंट वो अक्सर जाया करते थे सामान लेने, तो उनको सब परिचित थे। सुचित्रा योर लाला अंकल। मैंने कहा वो यहां सब केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, यहां वहां जहां जहां था केमिस्ट्री नजर आ रही, मेरे ऊपर तो अमृत की बारिश हो रही थी। मैं सुन रहा था और नोट कर रहा था। मैंने कहा अपने डॉक्टरेट करने तक, PhD कंप्लीट करने तक जो मुझे नहीं मिला, वो जनरल विजिट में केमिस्ट्री के डिस्कशन में सब कुछ आ गया। अब सुचित्रा किसी काम में बिजी थी, उसने कहा बहुत समय तक समय लेंगे और बहुत डिस्टर्ब होगा। वो किसी काम में बिजी थे और हम लोग केमिकल ढूंढवाते पूरा 2 घंटा लग जाता। तो उसके यहाँ डॉग था, उसने डॉग को मेरी तरफ भेज दिया। और डॉग को कोड भाषा में क्या कहती है, टाइगर हफरर। कोड भाषा का टाइगर नाम था, टाइगर कहती थी टाइगर, टाइगर टाइगर हफरफ, हफक जाओ उनको रब कर दो खा के, टाइगर हफरफ। जब ये सुना तो हम लोग डरे, टाइगर हफरफ। तब तक उसकी छोटी बहन आ रही थी, उसका नाम था बीना। तो हमारे लैब असिस्टेंट उसे कहते हैं, उसकी छोटी बहन से, क्योंकि डॉग निकल के बाहर आ रहा बहुत बड़ा था, तो उनका चैनल में ताला लगा दें। तो वो कहते हैं वीना बिटिया ताला है। देखिए सीयर टेक्निक, वीना बिटिया ताला है, ताला है, ताला है, दे दो भाई। सीयर 7th पीरियड, वीना बिटिया ताला है। उन्हें कहा बड़े कर्मों वाले हो ना, अभी ताला दे रहे हैं तुम्हें। वो भी नाराज थे, बहुत सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे ना केमिकल, तो बड़ी इरिटेशन हो गई, कहती क्या बड़े कर्मों वाले हो ना सर जी। क्या बोली वो,
बड़े कर्मों वाले, बड़े रूड लैंग्वेज यूज करती है, क्योंकि हम लोग बड़े और टाइम पे पहुंच गए वहां पर, मॉर्निंग ही। कर्मों वाले हो सर जी, यानी एस जी, बड़े कर्मों वाले हो ना सर जी, तो अभी ला रहे तुम्हें ताला देने। मैंने कहा सी इज ऑल्सो डिस्कसिंग इन केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई वी हैव टू नोट डाउन दिस। कर्मों वाले सर जी, यस जी। तब तक उसका भाई आ रहा था, उसका नाम था मुन्ना। तो मेरा लैब असिस्टेंट चूंकि बिनगवा का रहने वाला, बड़ी रफ लैंग्वेज यूज करता, डोमेस्टिकेटेड लैंग्वेज, और घबराहट में मर्यादा नास्त। उससे क्या कहता है, मुन्ना टेकरे, टेकरे मैंने कैच करना, मुन्ना टेकरे भाई बीएच, यानी डॉगारा पकड़ना मुन्ना, तो उसको कानपुर की लैंग्वेज बोल रहा है। मुन्ना, ये देखिए, मुन्ना टेकरे, टेकरे माने पकड़े, टीसी टेकरे भाई बीएच, मुन्ना टेकरे भाई, टेकरे माने पकड़ना। वो भी वैसे ही था, वो क्रिकेट खेलने जा रहा था, क्योंकि अंकल निकाल के देगा, तो जानते क्या लैंग्वेज यूज करता है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। फेरो अनारी शंकर हर्षित जी, मेरे लैब असिस्टेंट का नाम हर्षित था। तो कहता है फेरो माने टहलो जाके, फेरो ओ से अनारी, ऐसे शंकर, फेरो आर यू है, फेरो अनारी शंकर, ये देखिए, फेरो अनारी शंकर हर्षित, हर्षित माने एचएस। मेरे लैब असिस्टेंट जानते हो क्या कहते हैं, को रही, सीओ है बेटा, कुबाल, को रही इधर मित्रों। उन्होंने कहा जितने असिस्ट लोग यहां पर हैं, इनके बीच में तो कोई अच्छा इंसान रह नहीं सकता है, तो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। देखिए, को रही इधर मित्रों, मित्रों माने एमटी आ गया साथ में, को रही इधर मित्रों, मैं तो सुन रहा था, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, को रही इधर मित्रों। और तब तक मैंने देखा वो डॉग जो अंदर से निकल के आ रहा था, वो मेरे लैब असिस्टेंट को पैर में तेजी से पकड़ लिया। मैं तो दूर भाग के खड़ा हुआ, लैब असिस्टेंट गिर गए। क्या वो चिल्ला रहे हैं मैं नहीं समझ पाया, लेकिन दूर से जाके देखा, जानते क्या हुआ, नीले पड़ गए पंडित जी दर्द से, डीएस, कुत्ते ने काट लिया पैर में, तो नीले पड़ गए पंडित जी दर्द से, डीएस। दिस इज द लर्निंग टेक्निक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लिसन प्रॉपरली, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको लर्न नहीं है, देन द रिलेटेड क्वेश्चन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, यू कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली। अभी आप आगे पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, बेसिकली 11th भी होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ग्रुप है 11th में, बाकी 12th में है, और डी ब्लॉक पूरा मिलेगा आपको 12th में। एंड डी ब्लॉक इज द पर्टिकुलर ग्रुप इन विच हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन यू टू परफॉर्म, आइदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, और जेई मेन एंड एडवांस का हो। लेकिन जब डी ब्लॉक की स्टडी शुरू होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलता है। A very challenging questions and very challenging study related to D block. That's why the learning of such element is necessary. And जैसा मैंने बताया था, याद करिए, एटॉमिक नंबर का लर्न करने का तरीका, पी ब्लॉक है, एक ग्रुप का बता देता हूं। पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप ले लीजिए, एंड यू हैव टू लर्न दिस सीक्वेंस, यू हैव टू लर्न सिंपल दिस सीक्वेंस, 2 8 18 18 32। इनको ऐड करते चले जाइए पूरे ग्रुप पे, किसी ग्रुप भी ले लीजिए। सपोज वी आर टेकन द एग्जांपल ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट, आप बढ़ा देंगे, एक सीक्वेंस एक का मिल जाए। 13 में 3 है, लास्ट डिजिट 13 ग्रुप की 3 है, 3 में 2 ऐड कर दो 5, 5 में 8 ऐड कर दो 13, 13 में 18 ऐड कर दो 31,
31 में 18 ऐड कर दो, 31 में 18 ऐड कर दो, 49, और 49 में 32 ऐड कर दो, 81, और 81 में फिर फर्दर 32 ऐड कर दो, तो ये एलिमेंट आती है। क्लियर? एंड सिंपली फ्रॉम दिस साइड यू कैन राइट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 and 1 minute. Whole atomic number we have fill up after explaining the Yablak elements. And in case of Yablak elements, see here 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. See properly. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54. समझिए बहुत ध्यान से। यूं तो बुक में पीरियोडिक टेबल बनी होती है, लेकिन जब स्वयं बनाना पड़ता है ना, देन इट इज अ बिग चैलेंज। क्योंकि बुक में पुस्तक था तो या विद्या परस्गतम धनम काय काले समुत्पन्नेन स विद्या न तत्तनम, हमें नहीं समझ में आएगा। बुक में देख लिया, हाँ सब आ गया, बट सडन करना पड़ता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन डेवलप हो जाती है। तो यहां देखिए वहां हुआ 55, 56, 57, 57। अब यहां 58 नहीं है, नो। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, the 14 elements are placed in year block under lanthanide series। ये 14 एलिमेंट यहां एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो these 14 एलिमेंट यू नो, CE, PR, ND, PM, SM, EU. This is the EU. GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, ELU. These 14 elements from atomic number 58 up to 71, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69. See here, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71. These 14 elements are placed outside. ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, और इन 14 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से बाहर यहां एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो किस पर रखा गया? लैंथेनाइड सीरीज में, and their name is given as a lanthanoids. Why their name is given lanthanides? I will discuss later. Right? Lanthanide. These are the lanthanide elements. See. And now 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, okay, 87, 88, 89, और इसके बाद फिर 14 एलिमेंट यहां एडजस्ट नहीं हो रहे थे 7th पीरियड में, और these 14 एलिमेंट यू नो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103, these are also 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 से लेके कहां तक? 103 तक। दोज वे नॉट एडजस्टिंग हियर, यहां एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो इन 14 एलिमेंट को कहां रखा गया है? पीरियोडिक टेबल के बाहर, यह ब्लॉक में, अंडर एक्टिनॉइड सीरीज एंड नोन एज एक्टिनॉइड्स। एंड दिस एलिमेंट यू नो, TH, PA,
NP, PU, AM, CM, BK, CM, ES, FM, MD, NO, ELR. यू नो, इनकी लर्निंग ट्रिक हमने अपने म्यूजिकल केमिस्ट्री, मेरे YouTube चैनल में जाएं, उसमें एक आपको वीडियो मिलेगा म्यूजिकल केमिस्ट्री, उसमें पूरी ट्रिक दिया है ब्लॉक एलिमेंट विद चौपाई। मैं यहां पे टाइम नहीं किल करना चाहता। सी या 90, 91 अप टू 103 तक ये 14 एलिमेंट एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इसके बाद 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. From element 1062 118, these are recently discovered. कुछ ईयर पहले ये एलिमेंट नहीं थे. These are discovered and adjusted here. Clear? तो ये देखिए आपके, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यस ब्लॉक एलिमेंट, alkaline metal, alkaline earth metal. P block, typical elements. Typical element, P block elements are known as typical element. D block, transition metal, transition element. And A block elements are known as rare earth elements. And there मैंने टेक्निक आपको S ब्लॉक की बताई, टेक्निक P ब्लॉक की, टेक्निक D ब्लॉक की, and टेक्निक कैप्सूल discussed about A block. These are the two चौपाईस ऑफ रामचरितमानस. इनके बारे में डिटेल आप मेरे YouTube चैनल पे देखें, म्यूजिकल केमिस्ट्री. और मैं बड़ी जल्दी म्यूजिकल केमिस्ट्री सेकेंड वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही डेवलप करने जा रहा हूं. उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी है वो आप रिसेंटली जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं उनमें कन्वर्टेड पाएंगे. राइट? तो आज का डिस्कशन हमारा modern periodic table के. In my next video lecture, I will discuss the individual properties of S block, P block, D block, as well as F block elements. Thank you.